अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। नाउ इट्स द थर्ड topic from our fourth chapter, and this slide is I have taken from your outline. These are basic outcomes. To understand concept of table of specification, to understand importance of a blueprint, to make students to know importance of table of specification, and to enable them to develop a table of specification. For every problem, there is a solution. If you are not part of the solution, then you are part of the problem. 13% of students who got low grades in exams are caused by faulty test questions. It means table of specification is very important while we are constructing our test. In our last lectures, in our lecture number 10 to 18, we have discussed about the test construction, the rubrics formation, purpose of testing, etc., etc. And in each and every test I was talking about table of specification, and now again it's specifically this topic, and this lecture I have prepared only to make an important discussion with you people. So एक क्लास में जो बच्चे हैं 13% स्टूडेंट्स एक क्लास के इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है. To be able to prepare a good test, one has to have a mastery of the subject matter, knowledge of the learners to be tested, skill in verbal expressions, and the use of the different test formats. एक टीचर को एक अच्छा टेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर उसकी ग्रिप होनी चाहिए, उसे इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि स्टूडेंट का नॉलेज क्या है और उसके एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं बच्चे के, और उसको बच्चे को चेक करने के लिए डिफरेंट टेस्ट फॉर्मेट्स किस तरह से बनानी है, जिसमें उसके डिफरेंट टेस्ट आइटम्स के साथ साथ ऑब्जर्वेशंस कैसे करनी है, चेकलिस्ट कैसे बनानी है, बच्चों से पोर्टफोलियो किस तरह से बनवाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Now, what is table of specification? The definition of table of specification. Table of specification is a chart that provides graphic representations of or related to the content of a course or curriculum elements and the educational objectives. Table of specification is a two-way chart which describes the topics to be covered in a test and the number of items or points which will associated with each topic. Sometimes the types of items are described as well. A good test always includes items that measure the instructional objectives and course content validity. This can only be assured if it is developed by using some systematic procedure for obtaining a representative sample of student performance in each of the area to be measured. One device that has been widely used for this purpose is the two-way chart called a table of specification. This chart relates the instructional objectivity to the course content and specifies the relative emphasis to be given to each type of learning outcome. Meaning of table of specification. Table of specification is basically a plan prepared by a classroom teacher as a basis for test construction. It is important that this be carefully prepared because the table of specification basically is likely a table chart that goes over topic that will be on a test. This table chart is split into two charts and each subtopic is numbered under that main topic that are being covered for the test. This type of table is mainly used by teachers to help break down their outline on a specific subject. Some teachers use this particular table as their teaching guidelines by breaking the table into subjects, the teacher's main points, how much time spent on the point, and what assignment project can be done to help the student learner the subject to ensure the valid measure of the most rational, objective, and course content. Basically, paper and pencil tests are used to measure many aspects of student performance.
In fact, a beginner in the area of measurement is frequently surprised at the variety of learning outcomes that can be measured in this manner. All of the intended outcomes of instruction should be considered when planning their classroom test. If a comprehensive list of instructional objectives and specific learning outcomes has been prepared, it is simply a matter of selecting those outcomes that can be measured by paper and pencil. If such a list is not available, a set of instructional objectives can be prepared for the classroom test. टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को टू वे रखा जाता है, जिस तरह हम एक ग्राफ बनाते हैं तो एक ग्राफ की तरह इसके भी बेसिकली टू वेज इसकी रखी जाती है, और इसके लिए बाकायदा आगे मैंने कुछ डायग्राम और एग्जांपल्स दी हुई हैं जिससे आपको आसानी इसकी समझ आएगी. नाउ व्हाट इज द बेसिक पर्पस of table of specification? The most important of table of specification is to achieve balance in the test and to identify the achievement domain being measured and to ensure that a fair and representative sample of questions appeared on the test. अगर हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन या एक पेपर का ब्लूप्रिंट नहीं लेते तो हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हम बच्चे से क्या पूछने जा रहे हैं. इससे क्या होता है कि बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं जिनको हम बहुत अहम समझते हैं लेकिन हम उन्हें पेपर में इंक्लूड नहीं कर पाते. Table of specification allows us to ensure that our test focuses on the most important areas and weights in different areas based on their importance, time spent teaching. A table of classification also gives us the proof we need to make sure our test has content validity. What are the benefits of table of classification? First of all, helping in building a balanced test. इसमें हम हर टॉपिक से 10 मार्क्स का 5 मार्क्स का हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. अचीव द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट. अगर हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाएंगे तो हमारा टेस्ट वैलिड भी होगा और रिलायबल भी होगा, क्योंकि इसमें हम प्रॉपरली उन आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन करके चेक कर सकते हैं जो हमने पूरा साल या पूरे सेमेस्टर में बच्चों को चीज़ें कवर करवाई हैं. गिविंग स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस अबाउट द जस्टिस ऑफ द टेस्ट. बिकॉज इसमें किसी चीज़ को कम ज़्यादा शामिल नहीं किया जाता, किसी चैप्टर को छोड़ा नहीं जाता, हर चैप्टर का हर पार्ट जो है वो कवर किया जाता है. सिलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल. और ऑब्वियसली इसमें पूरे का पूरा जितना कंटेंट हमने कवर किया है सारे कंटेंट को एज अ सैम्पल लिया जाता है और उस सैम्पल में से एक पेपर या टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है. गिव ट्रू वेट फॉर ईच लेसन. इससे हर टॉपिक को प्रॉपर रैंडम सिलेक्शन का मौका मिलता है. Things should be taken in account when building a table of classification. जब टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया जाए तो उनमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए हमें कोर्स ऑब्जेक्टिव्स चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स. इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, असेसमेंट इन एजुकेशन, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एन आइडिया कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं. टॉपिक कवर्ड इन क्लास. कितने टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, 2, 3, 4 चैप्टर, फर्स्ट 4, लास्ट 2 चैप्टर्स. जितने टॉपिक्स क्लियर किए जा चुके हैं उन टॉपिक्स का अंदाज़ा लगाया जाए. अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन दोज टॉपिक्स, और उन टॉपिक्स को कितना टाइम दिया गया है. समटाइम्स कुछ टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक टॉपिक को कवर कराने के लिए 2 वीक्स लग जाते हैं. तो यहाँ हमें वो अंदाज़ा या वो जो हमने लेसन प्लानिंग की है वहाँ से हमें इस चीज़ की एक स्पेसिमेन मिल जाती है कि हमने एक टॉपिक को कवर कराने पे कितना टाइम स्पेंड किया है. टेक्स्ट बुक चैप्टर टॉपिक्स. टेक्स्ट बुक के अंदर से कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में कितने टॉपिक्स हमने कवर कराए हैं. एम्फोसिस एंड स्पेस प्रोवाइडेड इन द टेस्ट. और एक टेस्ट के अंदर हम कितना टाइम किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देने वाले हैं. A table of classification could be designed in 3 simple steps. जो हमारा टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर जब हम उसको बनाते हैं तो उसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द डोमेन दैट इट इज़ टू बी असेस्ड. वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सा डोमेन है, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है, वो कौन सा डोमेन है जिसको हमने चेक करना है. ब्रेक द डोमेन इनटू लेवल्स. जैसे यहाँ पे हम पहला जो हमारा डोमेन है कॉग्निटिव, उसको हमने उसके लेवल्स जो हैं वो लिख दिए हैं, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन एक्सेट्रा. देन कंस्ट्रक्ट द टेबल. ठीक है.
मतलब सबसे पहले ऑब्टेनिंग अ लिस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद आउटलाइन द कोर्स आउटलाइन, और उसके बाद प्रिपेयर द टू वे चार्ट। नाउ दिस इज द सैंपल ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। इसको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहा जाता है बिकॉज ये देखें कि ये इस साइड पे हमारी सारी लर्निंग कॉम्पिटेंसीज और कोड्स हैं या लेसन्स लिखे हुए होते हैं, और इस साइड पे हम उनका ब्रेक डाउन करते हैं कि हम कौन से डोमेन के तहत इन चीज़ों को चेक करने वाले हैं। एक रो में हम चैप्टर्स के नाम लिखते हैं और दूसरी रो में हम अपने डोमेन को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। नाउ हियर ये एक तरफ हमने टॉपिक कवर्ड किए हैं, ये वन वे है, और इसकी सेकंड वे इस साइड पर जा रही है जिसमें हमने क्लास ऑर्स लिखे हैं, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। और हमने फैमिली हेल्थ और नर्सिंग में से जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनाया तो उसमें हमने क्लास और जितने स्पेंड किए थे वो 2 थे उसके ऊपर, लेकिन हमने नॉलेज को 1 नंबर दिया है, 1 नंबर एप्लीकेशन के लिए रखा है, एक कंप्रीहेंशन के लिए और एक इवैल्यूएशन के लिए। इस तरह टू वे चार्ट बनता है जिसमें हम लोग वन साइड पे टॉपिक लिखते हैं और वन साइड पे उसका डोमेन लिखते हैं, और हर टॉपिक में से डोमेन के हिसाब से जितने नंबर लगाते हैं उनका टोटल करते जाते हैं। टिप्स ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को बनाने के लिए हमें जो हमने लास्ट चैप्टर नंबर जो हमारी जो लास्ट लेक्चर्स थे जिसमें हमारे सोलो टेक्सोनॉमी, ब्लूम टेक्सोनॉमी और बिहेवियरल जितने भी हमने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, तो वो चीज़ें भी उसमें हम जो है वो डेवलपिंग हाउ टू डेवलप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, तो उन सब चीज़ों को हम मद्देनजर रखेंगे। एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इज अ सिंपल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू बिहेव। जैसे हम एन ऑब्जेक्टिव हैज़ टू बी कंपोनेंट्स जिसमें हम बिहेवियर और कंटेंट की बात करते हैं, और कुछ जो हैं उनके अंदर हम इक्वेशंस और इस तरह की चीज़ें बच्चों से पूछ सकते हैं। तो जब भी हम एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाएंगे उसमें हम बेसिकली अपने तीनों डोमेन्स को देखेंगे जिसमें कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन तीनों आएंगे। और as you all know that level of cognitive domain has 6 steps: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation। और उसके साथ जब हम अगर हमने सेकंड वाला लेना है जिसको हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं, तो उसके अंदर हम अफेक्टिव डोमेन में रिसीविंग फिनोमिना ले सकते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू फिनोमिना ले सकते हैं, उसके साथ हम वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनलाइजिंग वैल्यूज को ले सकते हैं। ये 5 इसके लेवल्स होते हैं। लास्ट पे आता है साइकोमोटर डोमेन जिसके 7 स्टेप्स होते हैं: परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, अडॉप्शन, ओरिजिनेशन। उनके अंदर मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स वगैरह दिए थे जो हमारी लास्ट टॉपिक्स डिस्कस हुए थे। तो जब हम यहाँ क्वेश्चंस बिल्ड करते हैं जिसमें अगर हम लेट्स से कि हम नॉलेज को चेक करना चाह रहे हैं और हम नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं, तो अगर हमने पहला चैप्टर फैमिली हेल्थ नर्सिंग जिसमें बैग टेक्निक्स और होम विजिट्स लिखा हुआ है उसमें हमने नॉलेज चेक करना है, तो उसके अंदर हम पूछ सकते हैं डिफाइन बैग टेक्निक्स, ठीक है। कंप्रीहेंशन को चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लिख सकते हैं क्लासिफाइज बैग टेक्निक्स और डिस्क्राइब द बैग टेक्निक्स। तो जो हमारे डिफरेंट वर्ब्स थे जो हमने उसमें बनाए थे, कीवर्ड्स थे, उनको हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की सूरत में, जिस वक्त हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। नाउ व्हाट आर द टिप्स फॉर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन? डोंट मेक इट ओवरली डिटेल्ड। बहुत डिटेल से टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को नहीं बनाएं बिकॉज इट्स सिंपली अ ब्लूप्रिंट जिसमें आप सिर्फ इस चीज़ का अंदाज़ा करने की कोशिश करते हैं कि जो भी आप पेपर या टेस्ट बना रहे हैं उस पेपर पेंसिल टेस्ट में या वैसे उस जो भी आपका पेपर है या टेस्ट है उसमें आप एटलीस्ट सारे टॉपिक्स को इक्वल हिस्सा और जगह दें। इट्स बेस्ट टू आइडेंटिफाई मेजर आइडियाज एंड स्किल्स रादर देन स्पेसिफिक डिटेल्स। इसमें आप लोग अपने मेजर आइडियाज़ के बारे में बात करें उसके बजाय कि आप उसमें बहुत डिटेल से डिस्क्रिप्शन दें। यूज़ ऑफ कॉग्निटिव टेक्सोनॉमी दैट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू योर डिसिप्लिन। और ऑलमोस्ट जितने भी हम रिटर्न पेपर पेंसिल टेस्ट लेते हैं उसके लिए हम कॉग्निटिव डोमेन से ही उसके स्टेप्स और उसकी कैटेगरीज को लेते हैं। वेट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेक्स अगेंस्ट द स्टूडेंट्स लेवल, द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेस्ट, द अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल। जो छोटे बच्चे 5th क्लास तक होते हैं उनके लिए हम नॉर्मली नॉलेज, कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन तक जाते हैं, लेकिन अबव 5th क्लास हमें समटाइम सिंथेसिस, इवैल्यूएशन,
को भी शामिल करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बच्चों की लो लर्निंग और हाई लर्निंग दोनों डोमेन्स को चेक करना होता है। तो बच्चों की एज, उनकी मेंटल एबिलिटीज़, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का डोमेन डिसाइड करें। जो हमने सेकंड वे बनानी है जिसमें हमने डोमेन लेना है, कि हम ये चेक कर सकेंगे हम क्वेश्चन किस किस्म का पूछ सकते हैं। Number test questions. Continuously keep your test question in each test group uniform. Make your layout presentable. Do not put too many test questions in one test group. और उसके बाद ये डिफरेंट टेस्ट क्वेश्चंस बताए गए हैं कि अगर आप ट्रू और फॉल्स पूछना चाह रहे हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन शामिल करें। मल्टीपल चॉइस हैं तो मैक्सिमम 30 क्वेश्चन शामिल कर लें। मैचिंग टाइप है तो 5 ले लें, और अगर अदर जैसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग है तो वो 5 से 10 क्वेश्चन की तादाद जो है वो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। Now these are basically references, and before going to references, let me tell you again about this topic. जब हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को डेवलप करते हैं तो उसकी डेवलपमेंट में हमें जो चीज़ें करना होती हैं उसमें जो स्टेप्स हम लेते हैं, determine which topics will be included on the assessment. Typically these include lectures, discussions and reading etc. or any other assigned learning. जो भी आपने बच्चे को दिया है, रीडिंग करवाई है, डिस्कशन कराई है, प्रैक्टिकल करवाया है, उन सब का वेटेज आपने देखना है कि आप कौन सी चीज़ें अपनी असेसमेंट में एक बच्चे से कवर कराना चाहते हैं। Estimate approximately how much time was spent on each topic, क्योंकि sometimes हम सिर्फ उन चीज़ों का estimation कर सकते हैं, not more than that, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। Calculate the percentage of time spent per topic by dividing the time spent on each topic by the total amount of time. ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम में आई स्पेंड 1.5 क्लास सेशंस, उसके साथ आप उसका जो भी निकालें वो इस फॉर्मूले से आप उसको निकाल सकते हैं। राइट और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग आइटम्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आइटम्स पर टॉपिक। जितने टॉपिक आपने बच्चे को कवर कराए हैं उसके मुताबिक आप उसको चेक कर सकते हैं। और जो भी आपका ये टॉपिक या अमाउंट है या जो भी आप चैप्टर्स उसमें शामिल कर रहे हैं, द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ परफॉर्मेंस। देखें जो हमारे पास ये लिस्ट है, ये वाली सारी की सारी, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, दीज आर परफॉर्मेंसेज ऑफ द स्टूडेंट्स। The course content indicates the area in which each type of performance is to be shown. Thus, the second step is preparing the test specification is to outline the course content. This may be simply a list of major topics to be covered during the course or may be detailed list of topics or subtopics. जो हमारे टॉपिक्स कवर्ड हैं उनकी लिस्ट बहुत डिटेल से भी बन सकती है और जो इम्पोर्टेंट है आप सिर्फ उनकी लिस्ट भी बना सकते हैं। The amount of detail in the content outline depends on the purpose of the test, the segment of the course covered and the type of test interpretation to be used. और इस सब प्रोसेस में सिर्फ एक बेसिक चीज़ ये होती है कि वी वांट अ हेल्दी पेपर, अ हेल्दी टेस्ट, एंड फॉर दैट हम एक ऐसा पेपर चार्ट बनाते हैं, टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन बनाते हैं, जिसका पर्पस ये होता है कि हमारे पास एटलीस्ट ऐसे बच्चे और ऐसी चीज़ें ऐसा पेपर करके निकलें कि बच्चों को ये प्रॉब्लम ना हो कि ये चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई, और वो सब टॉपिक्स आपने अपने टॉपिक कवर्ड एरिया में लिखने हैं जो आपने बच्चे को कवर करवाए हैं। आउटलाइनिंग द कोर्स कंटेंट, और उसके साथ आपने 2-वे चार्ट बनाना है। जब आप अपने टॉपिक्स लिख सकते हैं उसके साथ अपना डोमेन डिसाइड करते हैं तो देन यू विल हैव टू प्रिपेयर द 2-वे चार्ट। द फाइनल स्टेप इज बिल्डिंग अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, that is to prepare the 2-way chart that relates the instructional objectives to the course content and thus specifies the nature of the test sample. An example of such a chart for a summative end of course test is 3 class
टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, जैसे कि अभी आपके सामने एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना हुआ है और इसके नॉर्मली आपके सामने दो ही हिस्से हैं, और जिस तरह भी आप टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, आप चाहे ये देख लें चाहे आप ये देख लें, इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में भी आपने ऑर्स लिखे हुए हैं, डेज लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी आपने क्लासेस और ऑर्स लिखे हुए हैं, और उसके साथ आपने इन सब चीज़ों को बताया हुआ। Well, these are at the end of the topic. I have written some references. Kindly check them. You can ask me any question anytime. Thank you.